જીવાણુને માનવીય સત્તામાં વિકસિત કરે છે અને પોતાના લાલ રક્તને દૂધ બનાવીને બાળકનું પોષણ કરે છે. નરમાંથી નારાયણ સુધી પહોંચાડે છે. નારીમાં જે પ્રકૃતિદત્ત ગુણો છે મારા બહેનો, દયા, મમતા, પ્રેમ, કરુણા, તેના કારણે જ તેને દેવી કહેવામાં આવી છે. અને નામની પાછળ દેવી લગાવવામાં આવતું હતું. તેનાથી નારીના ગરિમાનો બોધ થતો હતો. બહેનો, સંસારમાં દરેક ક્ષેત્રમાં નારીના અનુદાન હતા. અને નર અને નારી બંને સમાન છે. જો આપણા સમાજને અને રાષ્ટ્રને વિકસિત કરવા હોય, ફરીથી રાષ્ટ્રને જગતગુરુ બનાવવો હોય, તો નારીને તેનું ખોવાયેલું જે એનું ગૌરવ છે તે પાછું આપણે આપવું પડશે. બહેનો મારા, આજે હવે આપણે માતાની પાઠશાળા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો ભાઈઓ બહેનો, ગાયત્રી પરિવારનું એક વિશેષ લક્ષ્ય છે, અને એ લક્ષ્ય છે માનવમાં દેવત્વનું જાગરણ અને ધરતી પર સ્વર્ગનું અવતરણ. દરેક માનવમાં દેવત્વના જાગરણ માટે શાંતિકુંજ હરિદ્વાર દ્વારા એક આંદોલન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, અને આંદોલન છે આવો ઘડીએ સંસ્કારવાન પેઢી. આ આંદોલન અંતર્ગત ગર્ભવતી માતાઓને પ્રશિક્ષણ આપવા માટે ગુજરાતમાં દર શુક્રવાર અને શનિવારે માતાની પાઠશાળા 4 થી 5:30 ચાલી રહી છે, અને સોમવારથી ગુરુવાર એક્ટિવિટી અને યોગના ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે. તો બહેનો, 315મી માતાની પાઠશાળામાં ફરીથી આપ સૌનું સ્વાગત અભિવાદન છે. અને 315મી માતાની પાઠશાળા પ્રસ્તુત કરે છે આજે સુરત ઉપઝોન. તો આજની પાઠશાળામાં આવી રહ્યા છે ડોક્ટર લતાબેન નિંગુ. આપનો પરિચય જો હું આપું, તો આપ શ્રીએ હોમિયોપેથીમાં મુંબઈથી ગ્રેજ્યુએશન અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન લંડન ઇન્સ્ટિટ્યૂટથી કરેલ છે. આપ છેલ્લા 19 વર્ષથી સુરતમાં હોમિયોપેથી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છો, અને વ્યારાની CN કોઠારી હોમિયોપેથી મેડિકલ કોલેજમાં વિઝિટ કરો છો. આપ શ્રી ક્વોન્ટમ હિલિંગ એન્ડ પાસ્ટ લાઈફ રિગ્રેશન થેરાપિસ્ટ છો. આપ શ્રીએ ઘણા સેમિનાર, વેબિનાર્સ, માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અને બીજા અનેક વિષયો પર વર્કશોપ કર્યા છે. આપ શ્રી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં નેતૃત્વના ગુણોનો વિકાસ થાય તે માટે હાર્ટફુલના કાર્યક્રમો પણ કરી રહ્યા છો. આપ શ્રી હાર્ટફુલનેસ ટ્રેનર છો, અને 14 વર્ષથી આ કાર્યક્રમ ચલાવી રહ્યા છો. તો આજનો આપનો વિષય છે પ્રસન્ન માતાઓ. ખુશ માતાઓ જ સુખી પરિવાર બનાવી શકે છે. સુખી પરિવાર કોણ બનાવે? માતા. તો માતા કેવી હોવી જોઈએ? પ્રસન્ન, ખુશ માતા. તો એને કઈ રીતે ખુશ રહી શકે? હેપી મધર મેક હેપી ફેમિલીઝ. આ સબ્જેક્ટ લઈને આવી રહ્યા છે આપણી વચ્ચે ડોક્ટર લતાબેન નિંગુ. તો આવો ડોક્ટર લતાબેન, 315મી માતાની પાઠશાળામાં આપનું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાને મારું બહુ નમસ્કાર. અને 315 જો હે માતાની પાઠશાળામાં બધાને અભિનંદન અને મારો બહુ હૃદયથી નમસ્કાર. અને मैं જોઈ રહ્યું છું कि 68 लोग आए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इतने सारे नंबर्स में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है. तो मैं जरा हिंदी में बोलूंगी, और ठीक है. और मुझे ऐसा अच्छा लगेगा कि आप लोग भी अपने वीडियोस को ऑन करें. वीडियोस ऑन हो सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा, हम एक दूसरे को देख भी पाएंगे. बहुत अच्छा. थैंक यू सेजल जी. और भी लोग हो तो जीनल जी, थैंक यू. अपने अपने माइक को स्विच ऑफ रखिएगा, वीडियो सिर्फ ऑन करिएगा. थैंक यू रिंकू जी, अनिला जी, थैंक यू वेरी मच. थोड़े बहुत लोग मुझे दिखेंगे इधर क्योंकि 69 लोग हैं. तो ओके. तो अच्छा, मुझे होस्ट बनाया जाएगा मीनाक्षी पे, ताकि मैं मेरा ये शेयर कर पाऊँ. તૃપ્તિબેન, એક મિનિટ. હા, બોલો. એમને હોસ્ટ બનાવી દેજો ને બેનને. એમને લેપટોપ થી એક હોસ્ટ છે તો જ એ બોલી શકે. લેપટોપ થી એમને કઈ બી શેર કરવું હોય તો એ કરી શકશે. કોહોસ્ટ હોય એ શેર ઓકે, હું કો હોસ્ટ છું તો કરી શકીશ. સારું. એ હોસ્ટ બોલશો તો એમને જ પછી મીટિંગ બી બંધ કરવી પડશે.
જી જી હા બરાબર છે. હા ઠીક છે ઠીક છે. ઓકે. ઓકે. મારું પીપીટી જોવાય છે તમે લોકોને? હા દેખાય हाँ છે. દેખાય तो છે? ओके, एक मिनट फुल स्क्रीन करो। तो अम, तो ये हमारी जो आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं, खुशहाल माताएं खुशहाल परिवार को सर्जन करती हैं। तो ये हमारा जो है हमारी बुक है विजडम ब्रिज, हमारे गाइड ने ये लिखी हुई है, ये कई लैंग्वेजेस में है कि प्रस्तुत है, ताकि हम हमारे जो पेरेंटिंग है उसको हम कैसे कर सकें, और पेरेंट होने से पहले ही हमारी ये तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। तो आज तो हम ये एक प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, इसमें 10 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे कि खुशहाल माता है खुशहाल परिवार का निर्माण सर्जन करती है। तो मेरा सभी माताओं को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक बहुत बढ़िया कोट से हम शुरू करेंगे। हर एक जो आज यहाँ उपस्थित हैं, माताएं जो उपस्थित हैं, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं और मेरा गर्भाशय दिव्य जीवात्मा को जन्म देने के लिए आतुर भी है और तैयार भी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत प्यार। आगे बढ़ते हैं। और मैंने अभी जो बातें भी सुनी, जो हम स्त्री के ऊपर था, बहुत बढ़िया बातें सुनी कि हम भी वो शक्ति हैं, और शक्ति है तो हम भी क्रिएशन कर सकती हैं। ठीक। तो आज हम थोड़ी बहुत चीजें शेयर करेंगे, हालांकि आपको ये इंग्लिश में दिख रहा होगा, मैं बात हिंदी में करूंगी। और इसमें हम बातचीत करेंगे एपिजेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, थोड़ी सी साइंस की बात होगी कि एक गर्भवती महिला को क्या क्या चीजें असर कर सकती हैं, और इससे हम क्या सीख सकते हैं, और इससे क्या करेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है। आप सभी ने अभी जितनी सारी आपकी जो मीटिंग्स चलती हैं उसमें आपने काफी कुछ सीखा होगा कि शरीर को कैसे संभालना है, क्या क्या खान पान करना है, आपको कैसा रहन सहन होना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी का, क्या क्या आपको चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से काफी सारी बातें शायद शेयर हुई होंगी, मैं ये समझती हूँ। तो आज थोड़ा सा इसके इसके थोड़ा सा साइंटिफिक वे में जाएंगे कि प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या असर कर सकता है, और उसके क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। तो जैसे कि हम हमारे भारतीय संस्कृति में मुझे जरा पता चलेगा चैट बॉक्स में कि आप कितने गृहिणी, कितने जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, कितने प्रेग्नेंट लेडीज अपने घर पे गई हैं, मम्मी के घर। कितनी प्रेग्नेंट लेडीज अपने मम्मी के घर पे हैं? मुझे कुछ चैट बॉक्स में कुछ पता चलेगा? चैट बॉक्स હા કેટલા? યસ, જાનકીએ લખ્યું છે, ઝલકે લખ્યું છે, મમ્મીના ઘરમાં છો, અચ્છા મૈત્રી ઘરમાં નથી, ઓકે। મીનલે લખ્યું છે, જીનલે, અચ્છા મમ્મે ઘર છું, નરોલા, ઉર્વશી, હું સાસરી છું। સારું, થેન્ક યુ તમારા આન્સર્સ માટે। અચ્છા, મને લાગે છે અડધા જણા છે અને અડધા જણા આપણે સસुरालમાં છીએ। तो हमारे यहाँ जो प्रथा चलती है, तो जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, अब विश्व भर की थोड़ी सी बात करेंगे कि चाइना में भी ऐसा प्रथा है कि माताओं को बहुत सारा देखभाल करते हैं। ये एक्चुअली बेबी हो जाने के बाद की थोड़ी सी बातें हैं यहाँ पे कि चाइना में भी इनका माताओं का बहुत देखभाल होती है। 26 दिन से 100 दिन तक उनको बहुत संभाल के रखा जाता है। और वैसे ही नाइजीरिया में एक बहुत बढ़िया प्रथा है। मैं इसको जरा ऊपर करना चाहूंगी। ओ, एक मिनट। हाँ, मेरा शेयरिंग दिख रहा है कि बंद हो गया? दिख रहा है दिख रहा दिख है। रहा दिख है रहा जी। है। हाँ, पर मैं नहीं देख पा रही हूँ अभी। थोड़ा मल्टी स्पीकर स्पीकर
एग्जिट फुल स्क्रीन। एक मिनट, हाँ, मैंने कुछ शेयर। जस्ट अ मिनट प्लीज, होल्ड ऑन। ठीक है, मैं फिर से शेयर कर लेती हूँ, ओके, बिकॉज मैं मेरी स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ। मैं फिर से शेयर कर लेती हूँ। अभी दिख रहा है सबको? हाँ, दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है। नाइजीरिया में ऐसी प्रथा है कि ग्रैंड मदर जो दादी होती है ना, वो इसको नहलाती है। पहले पहले जो नहलाना होता है वो दादी नहलाती है। जापान में भी ऐसी प्रथा है कि वो माताओं को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। कोलंबिया में भी वो लोग, यानी सब जगह 40, 30 या 100 दिन तक वो अपनी जो नई गर्भवती माता होती है उनकी संभाल करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हमारी इंडिया की बात करते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रथा होती है, श्रीमंत जिसको कहते हैं, कि माँ को अपने घर भेजा जाता है। बहुत ही उसकी पूजा वूजा करके माँ को अपने माँ के घर भेजा जाता है, ताकि वो अपने माँ के घर बहुत ही खुश रह पाएगी। उसको रेस्ट भी मिलेगा, उसको काम की कोई चिंता नहीं। उसको ऐसा वातावरण मिलेगा जहाँ पे उसे बहुत प्यार मिल रहा है, उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बल्कि बल्कि ससुराल में थोड़ा सा हो सकता है कि हम काम नहीं छोड़ सकते हैं। वहां पे माँ होगी तो माँ बोलेगी कि भाई तू लेट जा और मैं करती हूँ। तो ये प्रथा हमारी कई सालों से ये चलती आ रही है। ये इसी वजह से है कि माँओं को ज्यादा से रेस्ट और प्यार बहुत मिले, और वातावरण ऐसा मिले कि वो बहुत सेफ महसूस कर रही है। बहुत प्यार से उसको देखा जा रहा है, देखभाल हो रही है, और उसको वो जो खाना है वो अपने माँ को बोल सकती है। तो ये सारी चीजें है ना, साइंटिफिकली इम्पोर्टेंट है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो, उससे बहुत प्यार मिले, उसे ऐसा वातावरण मिले जहाँ पे वो सेफ महसूस करती है। उसे बहुत पसंद आता है। वो जब भी रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट करती है, क्योंकि माताओं को, थोड़ी बहुत माताओं को ऐसा रहता है, प्रेग्नेंट लेडीज को, कि ये वॉमिटिंग की तकलीफ हो तो उनको शायद रेस्ट ज्यादा चाहिए, खाना पीना नहीं खाना मन करता है। तो बहुत सारी चीजें, हार्मोनल चेंजेस होती हैं। तो ये प्रथा कई सालों, कई पुश्तों से ये चलती आ रही है। इसका साइंटिफिक रीजन है, वो भी थोड़ा समझ लेंगे आगे जाके। उसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। ओके, तो एक ये बात आती है, क्या ये ऐसा ही रिचुअल है हमारे भारतवर्ष में, क्या इसका कोई कारण है? तो ये जरा कारण को समझते हैं। कारण समझते हैं एक घटित घटना से, जहां पे से ये रिसर्च किया गया था कि 1944 की विंटर में डच, यानी नेदरलैंड्स में ये घटना घटी थी। और ये तब का दौर है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। और वहां पे अकाल पड़ी, यानी ये सूखा पड़ा। सूखा जानबूझ के किया गया था यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो यहाँ पे लोगों को फूड जो है ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा था। ओके, तो दो दो देशों में जो लड़ाई चल रही थी, नेदरलैंड्स में खाना पीना को बंद कर दिया गया था। तो विंटर से ये चालू हुआ, उधर विंटर बहुत जल्दी भी आ गया। लोगों के पास खाना नहीं मिलता, जितना गवर्नमेंट के पास होता था वो देती गई। पर आगे जाके ऐसा भी होने लगा कि उनके पास परिवारों को सिर्फ एक ब्रेड मिलती थी, और वो लोग चीज खाते हैं तो चीज 2-2 हफ्ते में मिलती थी। ब्रेड, एक ही ब्रेड 1 हफ्ते के लिए चलता था। तो क्या माताएं खाएंगी, क्या बच्चे खाएंगे? तो इसी तरह बहुत सारे लोग मरने लगे। ठीक है, 22,000 लोगों की इसमें मौत हो गई। 1945 मई तक ये ऐसा चला कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के जो देशों में जो लड़ाई चल रही थी, वो जो ब्रिजेस होती हैं, वो ब्रिज को भी तोड़ दिया गया कि एक देश से दूसरे शहर में खाना न जा सका। तो इस तरीके से बहुत
भयंकर एक घटना घटी यहाँ पर। और फिर ब्रिटिश वालों ने यानी प्लेन में से खाना फेंकना शुरू किया। मई 1994 तक चला, 1995 तक चला, और उसके बाद इनको खाना मिलने लगा। अब ऐसा हुआ कि 1990s में डॉक्टर टेस करके हैं, उन्होंने एक रिसर्च करना चाहा कि इस दौरान जितनी महिलाओं ने बच्चा पैदा किया और जितनी महिलाएं प्रेग्नेंट हुई, उनका क्या हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ। तो ऐसा पाया गया कि, मैं वो वीडियो नहीं चला रही हूँ, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, कि 40,000 लेडीज जो थी, महिलाएं प्रेग्नेंट थी। इसे कहा जाता है हंगर, डच हंगर विंटर, इस रिसर्च को। तो यहाँ पे डिटेल रिकॉर्ड्स देखा गया, सब कुछ वहाँ पे डिटेल था कि 40,000 महिलाएं प्रेग्नेंट थी, और फिर इनके बच्चों का क्या हुआ। तो ऐसा पाया गया, जब ये बच्चे 50-60 साल की उम्र तक हुए, इनको बहुत सारी शारीरिक तकलीफें रहीं, इनको हार्ट की तकलीफें ज्यादा होने लगी, इनको मोटापा ज्यादा होने लगा, इनकी नौकरियां बराबर नहीं चलने लगी, इनको और भी इम्यूनिटी इनकी घटती गई। तो यहाँ से पाया गया कि ये एपिजेनेटिक्स की, एनवायरमेंट, जो हम जो प्रेग्नेंट लेडी जिस एनवायरनमेंट में रहती है, उसका असर भ्रूण पे, शिशु पे क्या हो रहा है। ये ये भी पाया गया कि यहाँ पे ये जो बच्चा 50-60 साल का हुआ, उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मेडिकल होने लगी। यही नहीं, इसने अपने बच्चों को भी ये पास ऑन कर दिया। तो एक जनरेशन से नहीं, दूसरे जनरेशन पे भी ये असर होती है। तो ये बात, इसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स, जो एनवायरनमेंट में माता रहती है। इसलिए हमारे जो भारतवर्ष में जो ये है कि माँ अपने घर जाएगी तो ज्यादा उसको खुशी मिलेगी, और वो खुशी जो है वो बच्चे में जाती है। यदि वो स्ट्रेस में रहेगी तो वो बच्चे में जाएगा ही। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि माँ अगर स्ट्रेस में रहती है, बच्चे को मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ट्रांसफर होता है। अब जिस तरीके की माँ की स्थिति, जिस तरीके का माँ का स्ट्रेस, उस तरीके का डिजीज बच्चे में होता है। हमने ये नहीं सुना है कि छोटे मतलब अंदर ही बच्चा जैसे बॉर्न होता है, उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होता है, यानी उसका या तो ब्रेन कम होगा या उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसका फेशियल अलग होता है, उसको हम मैं ये मेडिकल टर्म्स नहीं दे रही हूँ, मैं आपको उसकी प्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि कई सारे ऐसे तकलीफों से बच्चा पैदा हो सकता है। तो इसीलिए हमें हमें हमेशा बोला जाता है कि आप खुश रहिए, आप ऐसी चीजें पढ़िए, देखिए जो आपको अच्छा लगे। तो हमें चाहिए कि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। यदि पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो भी हमें उसको, हमारे थॉट प्रोसेस से उसे हमें चेंज करना होगा। थोड़ी बहुत बातें मैं उसकी भी बताऊंगी कि हमारे थॉट्स कितने कितने पावरफुल हैं, और जो शब्द हम कहते हैं वो कितने पावरफुल हैं। वो सब हमारा जो शिशु है, आप समझते होंगे मेरा शिशु तो अंदर है, वो उसे कुछ नहीं पता चल रहा है, उसे सब कुछ पता चल रहा है। आपकी और आपके प्रियजन जो घर पे हैं, उनके साथ जो बातचीत हो रही है, किस तरीके की बातचीत आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कौन सा सीरियल देख रहे हैं। आप अब तो ये डिजिटल का जमाना हो गया, तो हम क्या कितना रील्स पे रील्स देखते जा रहे हैं, कौन से रील्स देख रहे हैं, वायलेंस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो मैंने तो बहुत देखे हैं जो माताएं बहुत ही इस तरीके का जो सही जो सीरियल्स नहीं है वो सब देखते हैं, तो बच्चे के ऊपर जरूर असर होता ही है। तो हमें चौकन्ना रहना है, हमें ऐसी चीजें करनी है जिससे मुझे भी बहुत खुशी मिले, और ताकि मैं खुश रहूंगी तो मेरे बच्चे को भी वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं सकता, उसकी सुनने की जो ताकत है बहुत ज्यादा है। आगे चल के देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये है कि हम पहले सोचते थे कि हमारे जो
रंग सूत्र है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी से ही हमारे जो डिजीजेस हैं, जो तकलीफें हमें उससे ही रंग सूत्र से होती हैं। पर अब का जो रिसर्च हुआ है वो रंग सूत्र पे नहीं कहता है, वो कहता है कि क्या एनवायरनमेंट है, क्या हमारा वातावरण है, किस वातावरण में मैं रह रही हूँ। क्या वो वातावरण बहुत वायलेंस का है, क्या वो वातावरण बहुत प्यार भरा है, क्या वो वातावरण बहुत शांतिमय है। तो उस तरीके का वातावरण हमारे हमारे जीन्स को ट्रिगर करता है, न कि जीन्स जीन्स मतलब हमारे रंग सूत्र। तो हमारा एनवायरमेंट हमारे रंग सूत्र को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये पाया गया। और ये जो है, अगर एनवायरनमेंट ऐसा है तो हम एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? तो आप यदि इस ज्ञान में, इस अवेयरनेस में रहेंगे, तो ये अवेयरनेस आपके शिशु को अभी से ही मिल रही है। ये मत सोचिए कि इसको ये तो अभी कुछ जानता नहीं है, ये तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, तो इसको क्या समझेगा। पर उसका जो जर्नी है ना, उसकी जर्नी वो डे 1 से शुरू हो जाती है। जब उसका शरीर बनने लगता है, पहले तो उसका हृदय हृदय बनता है, हृदय फंक्शन करने लगता है। सभी ऑर्गन से पहले हृदय एक्ट करता है सबसे पहले, तभी हम उसकी हार्ट बीट सुनने लगते हैं, राइट। और तो हम हमारा जो एनवायरनमेंट है, एपिजेनेटिक्स जिसे कहते हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, हम सोशल इंटरेक्शन से, डाइट से, हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, जो हमारा खान पान से, हमारे फ्रेंड से, हमारे परिवार से, हम इसी सभी से इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो अब ये पता चला, हम अभी जो रिसर्च करा है, राइट, गर्भ संस्कार वो भी, राइट। अब ये बहुत ही हजारों साल पहले चरक संहिता करके ये चीज है, जो हजारों साल पहले इसने बताया था कि जो प्रेग्नेंट माँ है उससे हमें कैसे रखना चाहिए। एक एग्जाम्पल वो देते हैं कि एक कप लिया हमने, एक वेसल लिया, एक कप लिया, उसमें तेल भर दिया। अब मैं आपको बोलूं वो तेल से लपालप भरा हुआ कप, आप उसको हाथ में लेके चलो, तो क्या होगा? कोई बोलेगा मुझे क्या होगा? लपालप भरा हुआ कप, तेल से भरा हुआ, अगर मैं कहूँ वो लेके आपको चलना है, कोई आप आंसर कर सकते हैं? आपको म्यूट अनम्यूट करके बात कर सकते हो, क्या होगा? तेल नीचे गिर जाएगा। तेल नीचे गिर जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत संभाल के चलना है, बहुत संभाल के। तो इसी तरह हमें हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, हमारी जो बहुएं हैं, उन्हें इस तरीके से हमें संभालना है। आगे जाके आप भी सास बनेंगी, तो आप अपने बहू का इस तरीके से संभाल करना कि उससे कुछ भी तकलीफ ना हो। गर्भिणी व्याकरण यही कहता है चरक संहिता में कि हमें, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, हमें इस तरीके से उन्हें बहुत प्यार, बहुत संभाल के हर एक स्टेप पे उनको देखभाल करनी है, मानसिक और शारीरिक दोनों। मानसिक शारीरिक तरीके से हम डाइट तो खाते हैं, पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी मानसिक जो अवस्था है उसका हम संभाल करें। उसमें हम चीजें वही डालें जो हमारे मानसिक और शारीरिक के लिए स्वस्थ है और खुशहाल है, वही चीजें हम करेंगे। तो थोड़ी बहुत चीजें बताई गई हैं। हम ये आहार विहार औषध, इन सब चीजों से हम उनकी देखभाल करते हैं। मसाजेस, सनलाइट, म्यूजिक, म्यूजिक भी बहुत ही एक थेरापेटिक हेल्प करता है ना, म्यूजिक भी। तो इस तरीके से हम, जैसे मैंने कहा, शारीरिक, मानसिक बहुत इंपॉर्टेंट, मानसिक, मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स। अगर वो माँ के घर रहती है तो उसकी ये सारी जो है पैरामीटर्स सबको देखभाल मिलती है। ये प्रेगनेंसी के दौरान भी और बच्चा आ जाने के बाद भी। हमारे यहाँ ये प्रथा है कि बच्चा आ जाने के बाद एटलीस्ट माँ 40 दिन तक अपने घर पे ही होती है।
एटलीस्ट, यानी अगर 2 महीना कहें या 3 महीना कहें, तो वो अपने माँ के घर रहेगी और उसमें भी उसको वैसे ही संभाल करनी है। हर एक स्टेप पे बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत संभाल, बहुत केयर। आगे बढ़ते हैं। ये टॉक इंग्लिश में है इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अब आते हैं कि मैं ये कह रही थी कि बच्चा, आपको लगता है कि अभी वो कुछ सुन नहीं रहा। अगर आप दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच कोई अनबन हो रही है, तो वो सब महसूस कर रहा है, या वो महसूस कर रहा है कि आपके बीच क्या प्यार है, कितना कनेक्शन है, वो सब कुछ महसूस कर रहा है। हमारे हमारे जो है शास्त्रों में ये बहुत बढ़िया हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। मैं और भी एग्जाम्पल आपको दूंगी। ये है अब अष्टवक्र जो हैं उनके बारे में, और अभिमन्यु। अष्टवक्र ने गीता लिखी थी, बट अष्टवक्र जब अपने माँ की कोख में था, माँ सुजाता और कोहड़ा जो थे उनके, काहोड़ा थे उनके फादर। तो वो कहोड़ा बहुत सारे स्क्रिप्चर्स ज्ञान लेते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन जब उनसे कुछ भी मिस्टेक हो जाती थी, उनके जो वाचन थी उनमें जब कभी मिस्टेक हो जाती थी, तो वो अष्टवक्र अंदर पता चल जाता था कि ये फादर ने ये सही नहीं बोला, यहाँ पे गलत हुआ है। तो वो अपने माँ के गर्भ में एक किक लगाता था पैरों से, तो पता चलता था नहीं ये सही नहीं है। माँ उनको बोलती थी कि ये बच्चा कुछ कर रहा है, किक मार रहा है, यानी वो कुछ हमको आह्वान दे रहा है। तो तब 8 बार उसने एक बार ऐसे किया, 8 बार अष्टवक्र ने। तब कहोड़ा को, उसके फादर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुमको 8 प्रकार के शरीर में कुछ कुछ डिफेक्ट होगा। पर आगे जाके अष्टवक्र ने अष्टवक्र गीता लिखी। तो ये हमें पता चलता है कि भ्रूण सब कुछ महसूस कर सकता है, कर सकती है, और हमें कितना संभाल के रहना है। तो अभिमन्यु की जो बात आती है, अभिमन्यु भी हमें इसकी भी, इनकी भी हमें कहानी पता है कि अर्जुन और सुभद्रा में ये बातचीत चल रही थी, चक्रव्यूह में कैसे अंदर जाना है। बट क्या होता है, जब वो अर्जुन ने, जब वो उसको बोला कि यहाँ से चक्रव्यूह से ऐसे निकाला जाता है, तब तक सुभद्रा सो गई थी। तो अभिमन्यु वो सुन नहीं पाया था, वो सो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी चेतना, एक भ्रूण की चेतना कितनी हायर पे है, और हमें कितना संभालना चाहिए। हम क्या शब्द बोल रहे हैं वो सब सुन रहा है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए मैं एक और आगे जाके बात करूंगी कि इसीलिए हमें क्या करना चाहिए। तो 16 वर्ष की उम्र में अभिमन्यु उस युद्ध में गया, लेकिन चक्रव्यूह में जाने को आया, लेकिन वो निकल नहीं पाया। 16 वर्ष के बाद उसको वो सब याद था। तो ये कितना अनोखा है, बराबर। आगे बढ़ते हैं। तो साइंस ने फिर, ये तो हमें हमारे शास्त्रों से ये तो ज्ञान मिला हमें, लेकिन जो वर्ल्ड है, राइट, जो वर्ल्ड है आगे, जो आधुनिक जो वर्ल्ड है, वहां पे उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 ग्रुप बनाए गए। एक प्रेग्नेंट लेडीज को, एक ग्रुप में उनको कैरेट जूस पिलाते थे, यानी 6 महीने 9 महीने तक उसको कैरेट जूस पिलाया गया, और माँ को बहुत पसंद आता था वो। दूसरे ग्रुप को सिर्फ पानी देते थे। फिर आगे जाके उन्होंने देखा, जब ये बेबी आया, बेबी को जो सीरियल होता है ना, सेरेलैक, उसको कैरेट वाला दिया गया, तो वो बहुत प्यार से खाता था, बहुत मजे से खाता था। तो यहाँ पे पता चलता है कि उसको वो जो टेस्ट दी गई थी, उसको वो टेस्ट अभी भी पता है। अभी भी उसको पता है कि माँ को ये बहुत पसंद आता था, और मुझे भी पसंद आ रहा है। तो इस तरीके से रिसर्च भी किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यदि माँ स्ट्रेस में होती है, तो साइंस बोलता है या तो वो भागने की कोशिश कर रही है, या तो वो डर जाती है, या तो वो फ्रीज हो जाती है। तो ये हॉर्मोन्स आते हैं, स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं। तो बच्चे को ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स माँ में निकलते हैं, तो वो माँ की वजह से गर्भ में जो बच्चा है उसे भी ये महसूस होता है, और उसकी वजह से सारे जो स्ट्रेस कहीं से भी आ सकता है। आजकल माताएं काम भी करती हैं,
या जॉब में कुछ स्ट्रेस आया, या घर पे कुछ स्ट्रेस आया, या रिलेशनशिप में कुछ हुआ, या पैसे की कोई तकलीफ हुई, या वातावरण में कुछ हुआ, तो उससे माँ को असर हो सकती है। और इसकी वजह से आजकल हम देखते हैं कि माताओं को कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थोड़ी हेल्थ की इश्यूज, बार बार बुखार आना, ये सब कभी कभी ये चीजें हो सकती हैं। और ये चीजें स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। और ये स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, जब मतलब अगर आप स्ट्रेस में हैं, आज बहुत सारी माताएं हमारे साथ हैं, यदि आप, मैं ना चाहूं, मैं एक्टिवेट नहीं करती हूँ, पर अगर आप कुछ ही टेंशन में हैं तो हम आज आपके साथ हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में इसकी जानकारी भी देंगे, और इसे हम आज एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक और वीडियो है जो इंग्लिश में है, वो मैं नहीं चलाऊंगी, वो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो हमारे लिए क्या हम कर सकते हैं? खुशहाल माताएं, खुशहाल परिवार कैसे आ सकता है? तो वो आ सकता है माँ खुद से। हमने एक तो देखा वातावरण, ठीक है। दूसरा माँ खुद, उस वातावरण को जो है, यदि ऐसा वातावरण स्ट्रेस वाला है, तो उसको कैसे निपटा जाए? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, मेडिटेशन के साथ, और अपने आप को इसमें बिजी करें जहाँ पे आपको पसंद आता हो। थोड़ा टाइम आप अपने लिए निकालें, आपको जो पसंद आता है वो करें। और मैं ये भी कहूंगी, बच्चा सब कुछ सुन रहा है, आपकी हर एक बात सुन रहा है, आपकी हर एक थॉट को वो पकड़ रहा है। तो आपको जो बेबी बनाना है, आपका जो भी बच्चा आपको चाहिए कि मेरा विश है मेरा ये बच्चा हो, ये बने, अभी से, इसी क्षण से आप उससे बातें करने लगे कि आप ये हो। आप चाहते हैं उसे डॉक्टर बनना है, तो आप उसको बोलें कि मैं चाहती हूँ कि तू डॉक्टर बने, तो एक बहुत अच्छा इंसान बने, एक श्रेष्ठ नागरिक बने। आज हमने बात करी कि जो माता की चौकी जो है, उनका उद्देश्य की बात चल रही थी कि ह्यूमैनिटी बढ़े विश्व भर में। तो इसी तरीके के जो आपको जो चाहते हैं आपका बच्चा ऐसा बने, आप वो सारे गुण उसको स्पेसिफिकली, आप उसको सारे गुण बोलते जाइए कि तुम हो। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी, अभी माताएं हैं, तो आप अपने बच्चे में क्या क्वालिटीज चाहती हैं कि ये हो? आप चैट बॉक्स में लिखें, मैं देखती हूँ आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे में ये क्वालिटीज हो। थोड़ा सा इंटरेक्शन रखें, वन वे नहीं रखें, हमारे पास थोड़ा टाइम है। हाँ, आप क्या चाहते हैं, कौन सी क्वालिटीज आपके बच्चे में आए, आप क्या बनाना चाहते हैं अपने शिशु को? किसी का भी मैसेज नहीं आ रहा है मुझे। इंटेलिजेंट, ओके। तेजस्वी, वेरी गुड। और ऑनेस्ट, हेल्पफुल, इंटेलिजेंट। अनम्यूट नहीं हो रहा, आप इसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए, अनम्यूट नहीं हो रहा तो चैट बॉक्स में लिखिए। बहुत अच्छी क्वालिटीज बताई हैं, तेजस्वी, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, हेल्पफुल, इंटेलिजेंट बने हमारा बच्चा। और शूरवीर, बहादुर, तेजस्वी, संस्कारी, देशभक्त, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वेरी गुड। बहादुर, निडर, हम्बल, दयावान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी से ही देखिए आप में के अंदर भी कैसी फीलिंग आ रही होगी जब आप ये लिख रहे हैं। मुझे ये पढ़ के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। संस्कारी, सबको रेस्पेक्ट दे, स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, श्रेष्ठ नागरिक, वेरी नाइस। और सो आपको लगता है ये हो सकता है? सेकंड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको लगता है ये हो सकता है? हाँ, यस, यस, यस। वेरी गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, वेरी गुड, वेल डिसिप्लिन्ड, यस। ये आज आपने यूनिवर्स को हाँ बोला है, हाँ बोला है ना, ये आपने हाँ बोला है, तो ये होकर रहेगा।
स्पोर्ट्समैन बने, बहुत बढ़िया, सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन बने, ऑनेस्ट, बेस्ट ह्यूमन बीइंग, वेरी नाइस, वेरी डिसिप्लिन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब, ऑलराउंडर बहुत अच्छा। प्रे टू गॉड हर दिन। अब आप आज से इसी क्षण से देव जैसा, देव जेवो गुण, हाँ देव जेवो गुण, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये मैं बहुत ही क्या कहते हैं, दृढ़ता से, निष्ठा से कह सकती हूँ कि ये सब हो सकता है। कब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब आप अभी से उसके साथ ऐसी बातें करना शुरू करें, उसके साथ ये सब उसको बोले तुम्हारे में ये गुण है, होगा भी नहीं, ये गुण है और तुम ये बनोगे, ठीक है, ये हो तुम। तो आज से ये ऐसे शब्द, ये हाई वाइब्रेशन, आज आपने जितने भी इतने सारे खूबसूरत क्वालिटीज कही हैं, ये सभी क्वालिटीज आप उनके साथ बातें करते जाएं कि ये आपके पास, ये अंदर आपके है और मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे हाई वाइब्रेशन बातें उनके साथ करें, और आप देखना कि वो जब पैदा होगा वो ऑलरेडी तैयार होगा, चाहे कुछ भी वातावरण में हो, वो उसको वापस याद दिलाएगा, वातावरण कैसा भी हो, वो बातें उसको याद दिलाएगा, आपने जो उसके अंदर डाली हुई हैं वो जरूर वो याद करेगा। तो आज से क्या आप सब ये करेंगे, ये बातें, ऐसी हाई वाइब्रेशन बातें अपने अपने शिशु के साथ, क्या ये आप बातें करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। ये आपने वापस यूनिवर्स को हाँ कहा है कि हाँ मैं ये करूंगी, और ये आपका हाँ, ऐसे जैसे आपने हाँ लिखा, वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया, वे उसके सबकॉन्शियस में चला गया। वेरी गुड, आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको चालू रखें। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्राना, आपका इन्वॉल्वमेंट है, आप सुन रहे हैं मुझे, थैंक यू। तो पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इंटेंशंस, और कुछ डर, डर की कोई बात ही नहीं। एक सेकेंड, हाँ हाँ। तो ये बातें आई हैं कि माताओं को जितना हम जितना सेफ और प्यार और खुशहाल में रखते हैं, उसके प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं, उसके बाद भी, उसके बेबी शिशु होने आ जाने के बाद भी, तो ये ऐसा पाया गया कि जिनको बहुत प्यार दुलार, बहुत बहुत अच्छी तरह रखा गया है, उनका अटेंशन स्पैन, बच्चे का अटेंशन स्पैन 24 मिनट्स रहा है। ये बहुत बड़ा अटेंशन स्पैन है। अटेंशन स्पैन मतलब बच्चा एक जगह फोकस करके बैठ सकता है 24 मिनट तक, ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि माँ को वो पहचानने लगता है माँ के स्मेल से, शिशु 8वें दिन पर ही माँ के स्मेल से और माँ के जो दूध है उससे वो आइडेंटिफाई करता है, उसके आवाज को आइडेंटिफाई करता है 8वें दिन से बच्चा। ये जो बॉन्डिंग बनती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, वो एक बॉन्ड बनाता है दोनों के बीच, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ पे काम करता है। तो अब आप भी आगे जाके सास बनेंगी, बराबर, और यदि अभी से ही इस शिशु को आपने ऐसा वातावरण दिया, ऐसी बातें करी, ये सब वो आगे जाके आगे की जनरेशन, आप एक नए जनरेशन का क्रिएशन कर रही हैं। आप वैसे भी माताएं, आप क्रिएटर हैं, तो एक नए जनरेशन को क्रिएट कर रही हैं। कैसे? जब आप बहुत ही अवेयरनेस के साथ आप अपनी सोच और अपनी शब्द निकाल रही हैं। तो यहाँ पे एक कोट में शेयर करना चाहूंगी फ्लोरेंस स्कोवेल शिन का, योर वर्ड इज योर वैंड, वर्ड्स यू स्पीक क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। आपके शब्द, हमारे जो शब्द हैं, हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। तो आजकल मैं देखती हूँ कि माताएं थोड़ा सा कम पेशेंट हैं, पेशेंस धैर्य नहीं रहा है।
और हम अपने बच्चों को ऐसे शब्द बोल देते हैं जो नहीं बोलने चाहिए, कि तुमसे ये नहीं होगा। मैं ये चाहूंगी कि पेरेंटिंग के ऊपर अगर कोई क्लास मिलता है हमको, तो हम पेरेंटिंग के ऊपर भी करना चाहेंगे। आज तो पूरा फोकस है प्रेगनेंसी, ठीक है। अभी की जो आपकी देखभाल, अभी की जो आपका पढ़ना, आप जो चीजें पढ़ोगे, आप जो चीजें सोचोगे, आप जो चीजें बोलोगे, हर एक चीज वो महसूस कर रहा है अंदर शिशु। तो आप वही चीजें पढ़ें। आप इतनी अच्छी संस्था में जुड़े हैं, तो मतलब आप ऑलरेडी आध्यात्मिकता में बिलीव करते हैं, इसीलिए। पर ये अभी आप इस चीज को बढ़ाएं, अपने फ्रेंड्स को बोलें ये करने के लिए, आध्यात्मिकता में आए। इसे प्रेगनेंसी के बारे में बहुत ही बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत अवेयरनेस के साथ रहें। आपकी सोच क्या, आपके बोल क्या, इसके मैं एग्जांपल्स दूंगी आगे चल के। कि ये पानी वाला, शायद सब लोगों ने ये पानी वाला एग्जाम्पल पता होगा शायद, मैं रिपीट करती हूँ। जापान में एक मसारो एमोटो ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था। ग्लास बॉटल्स रखी थी, पानी की बॉटल्स, ओके, और उसको हर एक पानी की बॉटल को एक लेबल दिया गया। एक को दिया गया यू आर फुल, तुम इविल हो। एक को दिया गया थैंक यू। एक को दिया गया बहुत लव। एक को दिया गया पीस। एक को दिया हार्मनी। और वो वाले जो वाइब्रेशन थे ना, वो दी गई। इविल, तुम फूल हो, तुम बुद्धू हो, तुम बहुत प्यार भरे हो, थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका पूरा क्रिस्टल ही चेंज हो गया। आपको दिखाई दे रहा है? थैंक यू का, लव का, हार्मनी का, कितना ब्यूटीफुल। वो पानी का क्रिस्टल ही चेंज हो गया, उसका शेप ही चेंज हो गया, हमारे सिर्फ शब्द और विचार से जो हमने डाले उस बॉटल, पानी की बॉटल। तो मैं ये आप सभी को एक निवेदन करूंगी कि जब भी आप पानी पीते हो, जब भी आप पानी पीते हो, आप ये 4-5 संकल्प जरूर करिए। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में कहूंगी कि यू आर अ पावरफुल सोल, तुम शक्तिशाली आत्मा हो। ये हम खुद के लिए भी बोल सकते हैं, या हमारे शिशु के लिए भी बोल सकते हैं कि तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, तुम एक शांत आत्मा हो, तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम बहुत ही खुशहाल आत्मा हो, हर वक्त खुश रहने वाली आत्मा हो, तुम्हारा हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है और हमेशा रहेगी, तुम्हारे रिश्ते बहुत सुंदर और मैं इंग्लिश में बोलूंगी, योर रिलेशनशिप्स आर फुल ऑफ हार्मनी, यानी शांतिमय और प्रियमय और सम्मानमय आपके रिलेशनशिप्स हैं। तो जब भी आप पानी पीते हो, ये 6-8 जो संकल्प हैं, ये बोल के पीजिए। खाना जब खा रहे हो, ये जो संकल्प मैंने दोहराई हैं, बोली हैं, इसको बोल के पानी पिए, खाना खाइए। आपके पूरे वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे, खाने के वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे, पानी के वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जरूर करना आप। तो अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया हो, आई थिंक रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप ये, मैंने थोड़े बहुत बोले हैं संकल्प, ऐसे बहुत सारे संकल्प हैं, लेकिन ये मेन संकल्प हैं हम सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो आप पाओगे कि आपके शिशु को ये मिल रहा है, ये वाइब्रेटेड पानी आपके शिशु को मिल रहा है, ये वाइब्रेटेड पानी आप खाना आपके शिशु को मिल रहा है, वो पवित्र हो जाता है। जो पानी आप पीते हो, जो खाना आप खाओगे, वो पवित्र हो जाएगा। तो उससे बेहतर और क्या, बराबर। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं वापस निवेदन करती हूँ सभी से कि आप चाहे अब प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट नहीं है, मैं देख रही हूँ मीनाक्षी बारोट जी हैं, और भी ऐसे बुजुर्ग भी होंगे, हम सभी ये कर सकते हैं हमारे लिए। और जब अब हम दूसरों को दे भी रहे हैं, जब हमने खाना पका भी दिया है, तो उसको वाइब्रेट कर लो। आपने जो खाना पकाया, तो जो ये खाना खाएगा, जो पानी पिएगा, आपके जो पानी का मटका है,
उसको ये वाइब्रेशंस डाल दो, तो जो भी ये पानी पिएगा उसको ये वाइब्रेशंस मिलेंगी ही मिलेंगी। और आप पाओगे कि बहुत सारा बदलाव, दूसरों में बहुत सारा बदलाव, खुद में बहुत सारा बदलाव आप महसूस करोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये सब करने से ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमने चाही कि हमारी माताएं खुशहाल माताएं और एक खुशी परिवार, क्योंकि एक माँ ही जो है, एक स्त्री ही है जो घर को बनाती है और घर को बिगाड़ भी सकती है। तो हमारे अंदर बहुत शक्ति है, उस शक्ति को सही जगह पे, सही सोच पे रखना है हमें। तो वो सही सोच, सही बोल कैसे होंगे? जब हम अवेयरनेस में होंगे, जब हम ऐसी पद्धतियों को अपनाएंगे जो हमें हमेशा एक हायर वाइब्रेशन में रखेगी, जिससे हम चार्ज होंगे। हम आजकल अपने मोबाइल्स को चार्ज करते हैं, हमारे खुद को, मन को भी तो चार्ज करना है। ऐसे सब पॉजिटिव बातें सुन के, देख के, बोल के, सोच के, ये सब हाई वाइब्रेशन पॉजिटिव बातें करके, ये 1 या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन से नहीं होगा। ये हमें लगातार महीनों दर महीनों करना है। और फिर आप देखोगे आपके खुद के वाइब्रेशंस, आपके परिवार के वाइब्रेशंस चेंज होने ही होने हैं। आपकी जो स्थिति है वो चेंज होगी होगी। आगे बढ़ते हैं, मैं ये इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी। ये एक और चीज है जो मैं बहुत मेरे टॉक्स में बोलती हूँ, वो है ग्रैटिट्यूड। मैं ये पढ़ लेती हूँ। मेक इट अ हैबिट टू टॉक अबाउट ब्लेसिंग्स मोर देन बर्डन्स। व्हेन यू स्प्रेड पॉजिटिविटी, द यूनिवर्स ब्लेसेस यू with even more blessings. Close the window that triggers you, no matter how captivating it is. Be disciplined about what you entertain. Where focus goes, energy flows. So, हर क्षण हमें उस ग्रैटिट्यूड में रहना है, ब्लेसिंग्स के साथ रहना है। हमें कंप्लेन मोड में नहीं। बहुत सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तो है ही, तो लेकिन हम देखें कि हमारे लाइफ में कितनी सारी अच्छी चीजें चल रही हैं, उसके लिए हमें ब्लेसिंग्स देनी है हर वक्त। शुक्राना हर वक्त हमारे हमारे अंतःकरण से शुक्राना निकलना चाहिए। और वो शुक्राना जितना यूनिवर्स में जाएगा, वो यूनिवर्स सुनती है और वही हमें वापस वो ऐसी चीजें देती है। जैसे कि एक एक बच्चा जो है बहुत ही डिमांडिंग बच्चा है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है, मम्मी ये नहीं मिला, मम्मी वो दो, मम्मी ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। अगर बच्चा ऐसा करता है, एक बच्चा ऐसा है, दूसरा बच्चा कैसा है कि ओके मम्मी ये दे दिया, ये भी चलेगा, मम्मी ओके पापा ये भी चलेगा, ओके पापा, हर चीज के लिए ओके। तो माँ बाप को कैसा होगा? जो बच्चा ओके ओके करता है उसको लगेगा मैं इसको ज्यादा दूं, इसको ज्यादा दूं। तो जब हम भी इस स्थिति में रहते हैं कि हम भी ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत कुछ है हमारे पास जो और के पास नहीं है, हमारे पास ऐसी चीजें होंगी, लेकिन उसको अनदेखा करके हम अपने ब्लेसिंग्स को ज्यादा अहमियत दें और ग्रैटिट्यूड में, थैंकफुलनेस में रहेंगे, तो हमें यूनिवर्स भी देगा। अब माताओं का पावर, मैं एक स्टोरी से आगे बढ़ूंगी, मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन की तरफ। ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक हकीकत है। संग्राम सिंह, कितने लोगों को पता है संग्राम सिंह के बारे में? कौन है संग्राम सिंह? किसी को पता है कौन है वो? अच्छा, चैट बॉक्स में लाइन लखी आप जो हूँ छे ने मीनाक्षी बेन ने आपी दैसा बद्दा लाइन्स पर हवे। अच्छा, हवे हूँ संग्राम सिंह बारे में बात कर रही हूँ। संग्राम सिंह जब ये जन्म लिया था उन्होंने, उनको एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस करके एक बहुत ही गहरी बीमारी, जिससे क्या होता है सारे जो जॉइंट्स है ना, वो ऐसे जकड़न हो जाती है, बहुत पेन। बचपन से बचपन से ये उनको थी ये तकलीफ। लेकिन माँ, उनकी माँ का पॉजिटिव थॉट एंड पॉजिटिव वर्ड्स कि मेरा बच्चा तो आगे चल के कुश्ती कुश्ती करेगा, कुश्ती करेगा मेरा बच्चा तो, क्योंकि गांव वाले हैं,
गांव में कुश्तियां चलती हैं। तो इसकी माँ ने इसको बोला कि डॉक्टरों ने तो बोल छोड़ दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकेगा, ये आगे जाके इतना इसको बॉडी पेन होने वाला है, इस ये ठीक नहीं होने वाला। लेकिन इसका दृढ़ विश्वास माँ का, इतना छोटा शिशु, कि ये तो बनेगा, रेसलर ही बनेगा, क्योंकि ये गांव में पला बड़ा है, इसलिए उन्होंने ये कुश्ती की बात करी। और ये बिल्कुल सही होने वाला है। ये आगे चल के बहुत ही, इसका हेल्थ एकदम परफेक्ट है। बस यही वो बातें करती रही। और आगे जाके आप ये देख पाते हैं कि ये अभी 39 ईयर्स के हैं और इनको कोई डिजीज नहीं है। और ये आगे जाके वर्ल्ड रेसलर बने हैं, वर्ल्ड में, विश्व भर में ये रेसलर बने, ओलंपिक्स में गए। आज ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और एक्टिंग भी करते हैं, क्योंकि अच्छे दिखते हैं तो एक्टिंग भी करते हैं। तो ये माओ में इतनी, माताओं में ही नहीं, हम सभी में, क्योंकि ये जो सोच और बोल जो उन्होंने कहा, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, ये यही करेगा, ये यही बनेगा। चाहे उन्होंने वो नहीं देखा कि इसको ये डिजीज है, पर उन्होंने कहा नहीं, ये तो यही बनेगा। आप इनके YouTube वीडियो सुन सकते हैं, YouTube में बहुत कुछ है संग्राम सिंह के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में। ये इनका सुनिएगा। पेरेंटिंग के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत सुंदर। ये हम सभी के लिए एक शिक्षा है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि यदि हमारे में कोई स्ट्रेस है तो हम इसे कैसे इससे उभर सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव थॉट्स डाल सकते हैं, ये हमें कैसे हेल्प करेगा। तो हमारे हार्टफुलनेस में मैं ये भी इसको शायद मैं ये वापस आपसे शेयर करना चाहूंगी। विजडम ब्रिज ये बुक है, हर कोई माता पिता इस बुक को पढ़ना चाहिए, द विजडम ब्रिज। ये आप देख सकते हैं, आप अपने में लिख सकते हैं। ये कई लैंग्वेजेस में, गुजराती में भी है, तो ये आप गुजराती में अमेजोन से बाय कर सकते हो। तो अभी से ही आपको अपने बच्चे में किस तरीके के संस्कार कैसा देना है, पूरा, मैंने कहा ना 10 प्रिंसिपल्स है। आज मैंने सिर्फ एक ही प्रिंसिपल के बारे में आपसे बात कर पाई, वो भी बहुत डिटेल में नहीं बात कर पाई, मैं थोड़ी सी दृष्टि दी है आपको मैंने। तो ये बुक खरीदिए, इसको पढ़िए, और आपकी जो पेरेंटिंग है उसमें आप अपने में बदलाव लाएंगे, और आपका बच्चे का जो आप सभी ने इतनी ब्यूटीफुल क्वालिटीज लिखी हैं वो आप कर पाएंगे, नक्की कर पाएंगे। अब मैं आपको हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी, और फिर ये हम एक्सपीरियंस भी करेंगे आज। तो हार्टफुलनेस की जो पद्धति है, ये करीबन 1880 में चालू हो गई थी। 1880 यानी अभी बहुत बड़ा, बहुत सारे साल हो गए हैं इसको। हम जो हैं 190 देशों में उपलब्ध हैं हम, हमारी हार्टफुलनेस संस्था। और हमारी संस्था में ध्यान किया जाता है हृदय पर। हमारी जो ध्यान की पद्धति है उसमें 3 अंग हैं। रिलैक्सेशन मेडिटेशन जो आज हम करेंगे, दूसरा है सफाई, और नवनीकरण, उसे हम कहते हैं नवनीकरण या सफाई। तीसरा है प्रेयर, प्रार्थना। ये 3 ही अंग हैं, बहुत ही, अब जो आधुनिक जो टाइम चल रहा है उसके अंदर ये बहुत ही सरल और बहुत श्रेष्ठ ध्यान की पद्धति है। और हम ये कर रहे हैं 2008 से, इस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। और आगे मैं ये आपको इसकी जानकारी देना चाहूंगी कि हमारी पद्धति में हम हृदय पे ध्यान करते हैं, हृदय पर दिव्य प्रकाश पे ध्यान करते हैं। अब दिव्य प्रकाश को देखने की जरूरत नहीं है, ओके। हम जस्ट ये एक संकल्प रखते हैं, एक सुझाव रखते हैं कि मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश मौजूद है और वह मुझे भीतर की ओर आकर्षित कर रही है। बस इस सुझाव के साथ हम ध्यान करने लगते हैं। उस दिव्य प्रकाश को देखने की जरूरत नहीं है। अब हर एक ग्रंथ में कहा गया है कि ईश्वर हृदय में बसते हैं, इसीलिए ही हमारे संस्था में हृदय पर ध्यान करते हैं। और हृदय से ही हम लोगों को जानते हैं कि वो कठोर दिल है, वो प्रेम दिल है, वो दयालु दिल वाला है।
और जब हृदय स्टॉप होता है तभी ही शरीर खत्म होता है, तभी ही जो आत्मा है वो निकल जाती है, वो आत्मा का सीट है हृदय। ओके, तो हम आज इसको करेंगे। इससे पहले हम रिलैक्सेशन करेंगे। रिलैक्सेशन क्यों? क्योंकि हम शरीर को पहले रिलैक्स करें, उसके बाद जब ध्यान करेंगे तो वो सहज होएगा। अब जब ध्यान करने बैठते हैं तो विचार आना तो नॉर्मल है, आएंगे ही, क्योंकि मन का काम है सोचना, तो विचार आएंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, उन्हें अनदेखा करना है। उन्हें कैसे, अब मेहमान आते हैं ना अपने घर, हम उनको जब हमें कहीं घूमने जाना है और उसी वक्त मेहमान आएगा तो हम उसको चाय नाश्ता नहीं पूछते हैं, हम सिर्फ हूँ हाँ करके उनको जाने देते हैं। तो हम जैसे उसको अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो वैसे ही उनको अनदेखा करें, जो विचार आते हैं वो उनको आने दें, उनको जाने दें। आप सिर्फ खुद को ये रिमाइंड कराइए कि मैं तो ध्यान कर रही हूँ, फिर से अपना अटेंशन हृदय पर ले आए, सहजता से वापस हम दिव्य प्रकाश हृदय पर वापस आ जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग में ये करना घड़ी घड़ी होगा, जैसे आप करते जाओगे इस पद्धति को वैसे ये आसान होता जाता है। और मेडिटेशन करने से हमारे में जो पॉजिटिविटी की वाइब्रेशंस बनती हैं, एनर्जी बनती है, जो मैंने अब आज बातें आपको करी, हमको हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे वाणी को संभालना है। तो ध्यान करते करते हम खुद के ऊपर अवेयरनेस ज्यादा रखते हैं ध्यान करने से। ठीक, तो आज हम हार्टफुलनेस ध्यान करेंगे। केना, आर यू देयर केना? केना सिस्टर? मैं जरा देख लूं कि केना है या नहीं। शायद वो नहीं है। ठीक है, मैं आपको आ, ये रिलैक्सेशन करा देती हूँ और फिर हम ध्यान करने बैठते हैं। तो आप सभी अपने वीडियोस को ऑन रखें ताकि मैं आपको देख पाऊँ, यहाँ से मैं देख पाऊंगी। और मैं ये बंद कर रही हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। ओके, और मैं चाहूंगी कि आप सब अपने वीडियोस ऑन करें। मैं आपको आपका एक फोटो भी निकालना चाहूंगी। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, मीनाक्षी बेन, केना ने તમે એન્ટ્રી કરો ને, કેના આવશે? એક મિનિટ। હા, કેનાબેન આવી ગયા છે? હા, કેનાબેન આવી ગયા છે, તમે એમને કો હોસ્ટ કરી દેજો તો એ વાત કરી શકશે। હા, તૃપ્તિબેન, હા, કયા બેનને કરવાના છે? કેનાબેન। મીનાક્ષી બેન, તમે એ મને આખો ફોટો લેવાનો હતો, તમે હા હા, ત્યાં। હા, અત્યારે नहीं, તમે હવે वो स्क्रीन कैसे दिख रही है ना, आप सभी लोग नहीं। કેના બેન કયા નામથી જોડાયા છે? केना, केना, KENA, KENA આમાં નથી એટલા માટે પૂછે છું। છે। ફોન ઝૂમ આવ્યો મને। યુઝર, હા આ ઝૂમ યુઝર લખ્યું ઓકે છે ને તે ઓકે, તૃપ્તિબેન। હા ઓકે। હા, આવી ગયા। ઓકે, તો તમે થોડું કે મને ખબર નહીં એ સેટિંગ કેવી રીતે આવશે, મને તમારો બધાનો ફોટો લેવાનો હતો। તો આવી જ છે ને, તમે બંને ઉપર દેખાવ છો અને બધા નીચે, તો એ સેટિંગ કઈ ચેન્જ થઈ શકે તૃપ્તિબેન? શું કહો છો? અત્યારે તમને જે સ્ક્રીનમાં દેખાય છે ને, તમે બંને વધારે દેખાવ છો અને બીજા બધા નીચે દેખાય છે। तो वो सेटिंग जरा वो आप बाहर निकल जाइए या तो ऐसे करिए, क्योंकि मुझे सभी का फोटो निकालना है। वो क्या है, जिसका भी ऑडियो चालू होगा ना वो सबसे ऊपर दिखता है, तो हम लोग अपना ऑडियो बंद कर दे ऑडियो रहे हैं। बंद कर दीजिए। हाँ, ऑडियो बंद कर दीजिए। मीनाक्षी बेन તમે પણ, તૃપ્તિબેન તમે પણ।
જો અત્યારે એવું થઈ છે કે વોલ્યુમ ઇઝ સો સ્લો મેમ. ઓકે, વોલ્યુમ ઇઝ સો સ્લો. અત્યારે હવે તમે ઉપર દેખાવ છો. હવે કારણ કેનાબેન ને કઈ બોલવાનું છે એમને મેં હા કેનાબેન ને બોલવાનું છે. આવી ગયા કેનાબેન? હા આવી ગયા, પાછા નીકળી ગયા. થોડુંક સોરી હા, થોડુંક લેટ થાય છે. થોડુંક અમારા સાથે થોડુંક ટોલરેટ કરજો. नमस्ते। हाँ आ गए नमस्ते। नमस्ते केना जी। नमस्ते नमस्ते सभी नमस्ते। यहाँ पे उपस्थित सभी गर्भवती महिलाओं को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। तो अभी रिलैक्सेशन स्टार्ट करना है क्या दीदी? हाँ रिलैक्सेशन करना है। हाँ हाँ तो 10 मिनट कर लेते हैं, 10-15 मिनट है अपने पास। हाँ ओके फाइन, हाँ, चल ठीक ओके। ओके। तो हाँ गुजराती लैंग्वेज ज्यादा मीनाक्षी बेन कंफर्टेबल रहेगी? हिंदी? हाँ जी, गुजराती ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। ठीक है चलो। तो हम सब दीदी और कुछ बताना बाकी है कि स्टार्ट कर देना अभी? नहीं, वही मैंने आप सभी से बोला ना, पहले हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो केनाबेन जो है हमें वो इंस्ट्रक्शंस देंगी, गुजराती में देंगी। पैरों की उंगलियों से सर के ऊपर तक जाएंगे, फिर हृदय पर आएंगे। हृदय पर वो सुझाव देना कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है, और फिर हम ध्यान में बैठेंगे। तो सभी से निवेदन है अपनी वीडियो ऑन रखें, और फिर हम एक फोटो भी निकालेंगे सभी के साथ। ठीक है, तो शुरू कर। तो अभी આપણે બધા એકદમ આરામથી બેસી જશું અને તમારો બધાનો વિડિયો ઓન કરી દેજો, અને હું જે તમને કમાન્ડ આપતી જઈશ ને એના ઉપર તમે એ જગ્યા ઉપર ફીલ કરજો કે એકચ્યુઅલમાં એવું થઈ રહ્યું છે, એ સાચીમાં ફીલ કરજો। ઓકે, તો આપણે રિલેક્સેશનની શરૂઆત કરીએ। ખૂબ જ આરામથી એક કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન લઈને બેસી જાઓ અને હળવાશથી તમારી આંખોને બંધ કરો। હવે તમારા પગની આંગળીઓને થોડી હલાવો મહેસૂસ કરો કે ધરતી માતામાંથી આરોગ્યકારી ઉર્જા નીકળીને તમારા પગના તળિયા અને પગની એડીમાં પ્રવેશ કરી રહી છે। હવે આ ઉર્જા તમારા ઘૂંટણ તરફ જઈ રહી છે અને તમારા નીચેના પગને ખૂબ જ હળવા કરી રહી છે, એવો અનુભવ કરો। હવે આ ઉર્જા ઉપરના પગ તરફ જઈ રહી છે અને એને પણ ખૂબ જ હળવા કરી રહી છે। તમારા પૂરા પગ એડી સુધી રિલેક્સ થઈ ગયા છે। હવે તમારા કમરને અને પેટને ખૂબ જ ગહેરાઈથી રિલેક્સ થવા દો।
હવે ઉર્જા આગળ વધી રહી છે અને તમારા ચેસ્ટ એરિયા તરફ જઈ રહી છે. તમારા ચેસ્ટ એરિયાના બધા જ સ્નાયુઓ શિથિલ થઈ રહ્યા છે, રિલેક્સ થઈ રહ્યા છે એવું મહેસૂસ કરો. તમારું ધ્યાન તમારી બેક તરફ લઈ જાઓ. તમારી પૂરી પીઠ ઉપરથી લઈને નીચે સુધી પૂરી રીતે રિલેક્સ થઈ ગઈ છે એવો અનુભવ કરો. હવે તમારા ખભા, તમારા શોલ્ડર્સ જાણે કે ઓગળી રહ્યા હોય એવો અનુભવ કરો. તમારા ઉપરના હાથને ઢીલા છોડી દો. તમારી કોણી, નીચેનો હાથ આંગળીઓના ટેરવા સુધી પૂરી રીતે રિલેક્સ થઈ ગયો છે એવો અનુભવ કરો. તમારી ગરદનના સ્નાયુઓ શિથિલ થઈ રહ્યા છે એવું મહેસૂસ કરો. હવે તમારું ધ્યાન તમારા ચહેરા ઉપર લઈ આવો. તમારા જબડા, મુખ, નાક, આંખો, કાન, કપાળ, માથાના ઉપરના ભાગ સુધી અને ચહેરાની માંસપેશીઓ પણ બધું જ ખૂબ જ ગહેરાઈથી રિલેક્સ થઈ ગયું છે એવો અનુભવ કરો. પગની આંગળીઓથી લઈને માથાના ઉપરના ભાગ સુધી એકવાર પૂરા શરીરને જાંચી લો. અગર હજી પણ
ક્યાંય કોઈ તકલીફ, દર્દ, તણાવ કે કોઈ ચિંતાનો અહેસાસ થાય તો ફરી પાછું થોડી હજી વાર માટે ધરતી માતાની આરોગ્યકારી ઉર્જામાં ડૂબી ગયા હોવાનો અનુભવ કરો. હવે તમારું ધ્યાન તમારા હૃદય તરફ લઈ જાઓ. હૃદયમાં વિદ્યમાન પ્રેમ અને પ્રકાશમાં પોતાની જાતને ડૂબી ગયા હોવાનો અનુભવ કરો. શાંત અને સ્થિર બની રહો. હવે આપણે એ વિચાર લેશું કે મારા હૃદયમાં દિવ્ય પ્રકાશનો સ્ત્રોત પહેલેથી મોજૂદ છે, જે મને મારી અંદરથી આકર્ષિત કરી રહ્યો છે. અગર કોઈ વિચાર આવે તો એને આવવા દો, એનાથી લડશો નહીં. બસ આપણે એટલું જ કરવાનું છે, પોતાની જાતને યાદ અપાવો કે હું તો આ વિચાર ઉપર ધ્યાન કરી રહી છું. જ્યારે ધેટ્સ ઓલ બોલવામાં આવશે ત્યારે હળવેકથી તમારી આંખો ખોલજો. લતા દીદી ધેટ્સ ઓલ બોલશે આપણને ત્યારે આપણે બધા આંખ હળવેકથી ખોલશું એકદમ. ત્યાં સુધી આપણે આ વિચાર ઉપર ધ્યાન કરશું કે મારા હૃદયમાં દિવ્ય પ્રકાશનો સ્ત્રોત પહેલેથી મોજૂદ છે, જે મને અંદરથી આકર્ષિત કરી રહ્યો છે. પ્લીઝ સ્ટાર્ટ મેડિટેશન.
that song. બહુ હળવેથી अपनी आंखों खोજો. બધાને નિવેદન છે કે તમારો વિડીયો ઓન કરજો. થેન્ક યુ. બધાને આ સત્ર કેવું લાગ્યું થોડાક ફીડબેક મળશે ચેટમાં. સંગીતાબેન, સંગીતાબેન. હા, ખૂબ જ સરસ બેને ડોક્ટર લતાબેને જે આજે સમજૂતી આપી છે પીપીટી ના માધ્યમથી, અને પીપીટી પણ એકદમ સરસ અને અલગ જ આખું એમનું જે સરળ ભાષામાં અને બધા સમજી શકે એ રીતે ખૂબ જ સુંદર માર્ગદર્શન. બધાના રિવ્યુ પણ સરસ આવી રહ્યા છે. બધા બહેનોએ ખૂબ જ સરસ રીતે એટેન્ડ કર્યું છે અને હું આશા રાખીશ કે આપણે જે કાંઈ પણ જાણવા મળ્યું છે આજે, તો એમને પોતાની ડાયરીની અંદર નોટ કરી લીધું હશે બધાએ. બરાબર છે, કારણ કે આવા સરસ વક્તા આપણને સુરત ઉપજન મીનાક્ષીબેનના માધ્યમથી પ્રાપ્ત થયા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે સુરત નો. અને ફરીથી એમની સેવા આ રીતે મળે, બીજી વખત પણ એ આવે એવી આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ, કારણ કે ખૂબ સરસ. અને ખાસ કરીને જે લાસ્ટમાં પ્રેક્ટિકલી ડેમો જે કરાવ્યો એ પણ અદ્ભુત હતો, ખૂબ સુંદર રહ્યું. આવો ઘડીએ સંસ્કારવાન પેઢી ગુજરાત આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પાઠવે છે. તમે બધા સુરત વાળા જેટલા હોય તો અમે એ લોકો માટે 3 દિવસનું શિબિર પણ રાખી શકીએ. તો એ થઈ શકાયતું હોય તો એ પણ કરી શકીએ. તમે કેનાબેન સાથે સંપર્કમાં રહેજો અને અમે કહેજો કે ક્યાં કરવાનું છે. ઘણા નંબરમાં લોકો આવે, બધાને એનો લાભ મળે તો એવું અમે પણ ઈચ્છીએ છીએ. તો फिर से बुलाइएगा, हम फिर से ये सेशन करेंगे, पेरेंटिंग पे सेशन करेंगे और हार्टफुलनेस के सेशन के लिए यदि करना हो तो प्लीज हमें कहिएगा. જરૂરથી કરાવીશું, જરૂરથી તમારો કોન્ટેક્ટ કરીશું કેનાબેનનો. સંગીતાબેન, આપણે શાંતિ પાઠ લઈ લો છો. ચોક્કસ, સમય પૂરો થાય છે. એક બેનનો મેસેજ છે કે પાવરફુલ વાળી લાઈન છે એ જરા ચેટ બોક્સમાં મૂકે તો બધાને ક્લિયર. પાવરફુલ વાળી જે લાઈન હતી ને, હું 6 ચેક લાઈન. બોક્સમાં મૂકું કે મીનાક્ષીબેન ને આપી દઉં તો બધાને મળી જશે? ઓકે, હા, તો એ બરાબર. એ બરાબર છે. હા, તો મીનાક્ષીબેન ને હું દેજો. એમને આપી દઈશ લખીને. હું થોડુંક ઇંગ્લિશમાં કરી દઈશ અને તમારે પાસે જે ટ્રાન્સલેશન હોય ને તો એ ટ્રાન્સલેટ થઈ શકતું હોય તો થઈ જશે. હા, હિન્દીમાં આપો તો પણ વાંધો નથી. કઈ વાંધો નહીં, તો એ કરીને તમે મોકલી આપો. જી, જરૂર. ધન્યવાદ. શાંતિ પાઠ લઈશું. મીનાક્ષીબેન લઈ લો તમે. જી, આપણે સૌ કમર ગરદન સીધા, નેત્ર બંધ કરીશું. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ જે પણ કંઈ સાંભળ્યું છે તેને આપણે ફોલો કરવાની આપણને શક્તિ પ્રદાન કરે. ઓમ દ્યૌઃ શાંતિરંતરિક્ષગ્વં શાંતિઃ પૃથ્વી શાંતિરાપઃ શાંતિરોષધયઃ શાંતિઃ વનસ્પતયઃ શાંતિર્વિશ્વે દેવાઃ
શાંતિર્બ્રહ્મ શાંતિઃ સર્વગ્વં શાંતિઃ શાંતિરેવ શાંતિઃ સા મા શાંતિરેધિ. ઓમ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ. સર્વારિષ્ટસુ શાંતિર્ભવતુ. આપ સૌને જય ગુરુદેવ. ફરીથી આવતીકાલે 4 વાગે આપણે સમયસર મળીશું માતાની પાઠશાળામાં. આવતીકાલે નહીં, સોમવારે 4 વાગે. સોમવારે સોરી, આજે હા. મારો શુક્રવાર જ મને ખ્યાલ છે. આજે શનિવાર છે. સોમવારે 4 વાગે આપણે એક્ટિવિટી અને યોગના ક્લાસમાં મળીશું. સમયસર હાજર થઈશું.